हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर हमने देखा था दैट इज फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें अपवर्ड एंड डाउनवर्ड देखा था। नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वी आर गोइंग टू सी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता क्या है, राइट? सो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन दैट इज, जस्ट अ मिनट, horizontal communication, this form of communication take place when among the peer group of hierarchy द इक्विवेलेंट एम्प्लॉय, यानी सेम लेवल के जब एम्प्लॉय होते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट से, राइट, सब ऑर्डिनेट्स होते हैं, अदर डिपार्टमेंट, टीम कलीग, टीम मैनेजमेंट, टीम लीडर, राइट, such communication is often is necessary to facilitate the coordination, save time, bridge the communication gap and among the various departments. Generally this is the form of communication is informal and can bypass the formal hierarchical channel and the expedite the action. It means that कि ये टाइप के आप जब भी कम्युनिकेशन करते हो, इट मीन्स जब भी आप सेम लेवल के टीम कलीग के साथ बात करते हो एज वेल एज कोई दूसरे डिपार्टमेंट के जो कलीग होते हैं उनके साथ जो कम्युनिकेशन करते हो, दैट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, राइट? इन दिस पिक्चर you can see this the team colleagues as well as the other department, team management, team leader and even if the subordinate, this level of communication is called as horizontal communication. Here you can see in this picture, these are the famous president of all the states, all the countries, right? So this level of communication is called as horizontal communication. Now diagonal communication, the diagonal or crosswise communication flows as in the direction and the cut across the function at the level in the organization, right? When the sales manager communication directly to the vice president, who is not only the different division but also the higher level of organization, they are the engaged in the diagonal communication. Through this communication divides from the normal chain but command, there is no doubt that is a quick and efficient, right? Diagonal communication मतलब क्या, किसी को bypass करके आप directly किसी के साथ communication करते हो, right? So here you can see in this picture there are three department A, B and C, right? So here we are going to communicate, the department B is going to communicate with the vice president of marketing department, or department B is directly communicate with the vice president of sales department. So this is called as डायगोनल कम्युनिकेशन, यानी सेम डिपार्टमेंट के सेम एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेट नहीं करना, यानी मार्केटिंग वाला है तो मार्केटिंग के साथ सपोज कम्युनिकेट नहीं करेगा, मार्केटिंग वाला वाइस प्रेसिडेंट सेल्स के साथ कम्युनिकेट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज डायगोनल कम्युनिकेशन. Communication network, the variety of pattern emerging when the communication combines the vertical and horizontal channel, right? Communication network कैसे बनता है, जब भी vertical horizontal ये communication जब भी combine होता है, at that time the communication network will be enhanced, right? So next is formal network model. Formal network model में that is the chain system, right? Chain network, the chain network represents the vertical hierarchy in which the communication can flow upward and downward, right? चेन सिस्टम आपने जनरली फॉलो की होगी, राइट? जनरली जो भी सेल्स कंपनी होती है, सेल्स कंपनी जनरली किस पे फॉलो करती है, ये चेन सिस्टम पे काम करती है, दैट वन पर्सन इज कनेक्टेड टू द अदर, अनदर पर्सन इज कनेक्टेड टू द थर्ड वन, right? That would be either upward or downward. We can find that this type of network can be direct line to the authority communication with no derivations, right? Y network, Y network अगर आप देखो यहाँ पे डायग्राम में तो आपको पता चल जाता है कि एक Y फॉर्म बनता है. Y network in the effect that multi level hierarchy and the combination of horizontal and the vertical level of flow. If we turn the Y upside, we can see this two subordinates is reporting to the वन सीनियर पर्सन. दैट मीन्स मल्टीपल पर्सन है, वो मल्टीपल पर्सन किसी एक पर्सन को कम्युनिकेट करता है और वो एक पर्सन आगे के लेवल पे कम्युनिकेट करता है. दैट मीन्स एक वाई फॉर्म बन जाता है एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम. सो यहाँ पे जो आपको ये पर्सन दिख रहा है, दैट पर्सन इज व्हाट द मोस्ट सीनियर वन. सो दैट इज कॉल्ड एज वाई लेवल नेटवर्क. wheel network, right? Wheel network refers to the subordinates that reporting to the superior. In this combination of horizontal and diagonal flow of the communication, but here the subordinates are the equal rank of them report to the one senior without any interaction between themselves, right? It is simple one,
राइट. रिफर्स टू व्हाट? इट इज रिफर्स टू द सबऑर्डिनेट एंड रिपोर्टिंग टू द सुपीरियर, यानी वो सुपीरियर को डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है. बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज डायगोनल. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी होता है और डायगोनल कम्युनिकेशन भी होता है. कहाँ पे? यानी मेन जो अथॉरिटी पर्सन होता है वो कहाँ पे होता है? वो सेंटर में होता है, राइट. एंड दैट इज द इंटरेक्शन बिटवीन देम. Circle network. Circle network allows to employ that interact with the adjacent member but not the further. There is a vertical communication between the superior and horizontal communication at the lower level, right. यानी एक सर्कल फॉर्म में कम्युनिकेशन होता है, सुपीरियर लेवल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है एक लोअर लेवल में, यानी वो अंदर अंदर बैठ के डिस्कस करते हैं, राइट. उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज द सर्कल नेटवर्क. ऑल चैनल नेटवर्क, और यू कैन से हाइब्रिड. आप इसको हाइब्रिड भी बोल सकते हैं. हाइब्रिड मीन्स व्हाट? सब मिक्स करके प्रेजेंट करना. ऑल चैनल नेटवर्क विच इज लीस्ट स्ट्रक्चर enables that employee to be communicate freely with each other with no restriction who can communicate with whom. All are equal. Employees are formally or informally assumes that the leading role, hence the everybody view and equally and openly shared. But ये generally ऑल चैनल नेटवर्क बहुत रेयर केस में होता है, बहुत रेयर केस में, राइट. इनफॉर्मल नेटवर्क मॉडल. बिसाइड्स द फॉलोइंग थ्रू द फॉर्मल नेटवर्क द कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो ट्रेवल्स अलॉन्ग द इनफॉर्मल नेटवर्क, राइट. ग्रेपवाइन मतलब इनफॉर्मल नेटवर्क मतलब आप किसी अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बात कर रहे हो, वैसे आप किसी एम्प्लॉय एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ बात करता है और उनके बीच में जो नेटवर्क कम्युनिकेशन क्रिएट हो जाता है दैट इज इनफॉर्मल नेटवर्क. यानी आपको एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूँ, जस्ट टेक इट एन एग्जांपल, डोंट टेक इट सीरियसली, राइट. कि अगर आप किसी एक इंस्टीट्यूट में आप एम्प्लॉय हो, अगर आप काम कर रहे हो, तो आपके वो इंस्टीट्यूट के बाकी सारे एम्प्लॉय के साथ आपकी अच्छी फ्रेंडशिप बन जाती है और आप लोग क्या करते हो? अपना खुद का एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हो, राइट. तो दैट वुड बी इनफॉर्मल नेटवर्क मॉडल, राइट. वो एक इनफॉर्मल नेटवर्क मॉडल हो जाता है. क्लियर? single stand message is a pass from one person to another and another person to the another stand, right. एक पर्सन दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन पे. इट इज सिमिलर लाइक अ चेनिंग प्रोसेस. बट चेनिंग प्रोसेस कैसा होता है? अपवर्ड से डाउनवर्ड के पास जाता रहता है या फिर डाउनवर्ड से अपवर्ड के पास जाता रहता है. जबकि सिंगल स्टैंड में क्या होता है कि नीचे से ऊपर भी जाता है, ऊपर से नीचे भी जाता है साइमल्टेनियसली, राइट. दैट इज सिंगल स्टैंड. गॉसिप्स, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग और सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग चीज़ें जो होती है वो इसी से होती है, दैट इज़ गॉसिप्स, राइट. एक दूसरे के बारे में गप्पे मारना, किसी को एक दूसरे को ट्रोल करना, और सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ यही है सोशल मीडिया पे. इन दिस गॉसिप नेटवर्क्स द पर्सन passes the information to all others, right. either it is a right information or either it is a wrong information, who cares, right. So that is gossips. Probability network, the probability type of network tells that person a random. Probability type of network, each person tells a other person random, यानी कोई भी एक पर्सन किसी अननोन पर्सन को रैंडमली बताता है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी नेटवर्क. गेटिंग? रैंडम पर्सन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, दैट इज प्रोबेबिलिटी नेटवर्क. Cluster network is a flow of information that is passed by the selected people to selected few others. That is called as cluster. यानी एक ग्रुप के पीपल दूसरे ग्रुप के पीपल को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पास करेंगे, दैट इज क्लस्टर. यानी मेरा एक ग्रुप है, मैं किसी एक फ्रेंड को बोलूंगा, वो एक फ्रेंड उसके दूसरे ग्रुप को बोलेगा, और दूसरा ग्रुप किसी एक फ्रेंड को बोलेगा, वैसे क्लस्टर बनता जाता है, ग्रुपिज्म होता जाता है. Advantages of grapevine: it is not expensive, rapid, multi-directional, it can be resolve conflict, serve as an outlet or anxiety worries for frustration and voluntarily and unforced, right. So ये सारे advantages है grapevine के, right. Disadvantage: reveal some disagree or error, be harmful cases, baseline imaginary, lead to the misunderstanding because incomplete information can causes the damage and organization because of the exercise swiftness time, right. ये एक बार मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, जस्ट आप इसके एडवांटेजेस को एक बार गो थ्रू कर लीजिए, जस्ट 30 सेकेंड्स, नॉट 1 मिनट.
right? So here advantages of grapevine communication, that is not expensive. ये expensive नहीं है. grapevine communication मतलब आप ऐसा समझो कि it is a one kind of pipeline. grapevine मतलब अंगूर का जो गुच्छा आपने देखा होगा, राइट? तो वो कैसे मल्टीपल पर्सन के साथ कनेक्टेड होता है. सो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है. किसी एक पर्सन को इन्फॉर्मेशन पास कर दो, ये सेट दूसरे नोड को पास कर दो, ये सेट तीसरे नोड को पास कर दो, एंड इट विल बी पास ऑन एंड ऑन, राइट? रैपिड होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है, इट कैन सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, यानी कॉन्फ्लिक्ट होता है वो भी इजीली सॉल्व हो जाता है, वॉलंटरीली अनफोर्स्ड. सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, इट कैन बी हार्मफुल इन कॉज बेसलेस एंड इमेजनरी, कि अगर बोलते ना बिना हाथ पैर वाली बात अगर आपने कर दी तो इट विल बी कॉजेज द हार्मफुलनेस, राइट? Characteristics and general technical communication. General technical communication, that is general message, and technical communication, that is not that much important. Okay, importance of technical communication. Technical communication play a pivotal role in the organization, whether the business enterprise, an industry, academic institute, all the managerial or administrative activities involves the communication to be planning, organization, recruiting, coordinating and decision making. यानी टेक्निकल कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. पाइवट रोल मीन्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. कब? व्हेन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिक्रूटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड डिसीजन मेकिंग, राइट? सेकेंड, success of an organization largely depend on upon the quality, quantity of information flow through its personnel. The various type of communication not only helps the organization to grow but also enables the communicator to develop the certain attributes, right? So this is technical communication. टेक्निकल कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, ओरल एंड रिटन. ओरल मतलब आप बोल के कुछ करते हो, रिटन मीन्स इन फॉर्म ऑफ राइटिंग. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एग्जिस्ट इन अ ऑर्गेनाइजेशन. हाउएवर द organization get organized because of its communication. It is impossible for organization to survive without the communication, therefore important cannot be ignored. यानी अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो तो कम्युनिकेशन इज मस्ट. कुछ कम्युनिकेशन आप आ रहा है और आप उसको इग्नोर करो, दैट कुड बी नॉट एक्सेप्टेबल, राइट? सो दिस इज इट अबाउट द कम्युनिकेशन. ये पूरा एक कम्युनिकेशन चेन था, राइट? जनरल और टेक्निकल कम्युनिकेशन के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स. जनरल कम्युनिकेशन जनरल मैसेज होता है, टेक्निकल कम्युनिकेशन टेक्निकल मैसेज. जनरल में इनफॉर्मल वे में हो सकता है और टेक्निकल जनरली फॉर्मल वे में होता है. फॉर्मल इनफॉर्मल मतलब आप एक समझो कि आप अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो तो वो क्या हुआ, इनफॉर्मल, राइट? समथिंग लाइक कि अगर आप अपने फ्रेंड के साथ बात करो तो आप उसको ज़्यादा इज्जत नहीं देते हो डेफिनेटली. और अगर आप अपने किसी एल्डर के साथ बात कर रहे हो, आप सर के साथ बात कर रहे हो, तो दैट शुड बी फॉर्मल, राइट? आप उनको रिस्पेक्ट देना पड़ता है, लाइक रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, लाइक. नेक्स्ट, नो सेट पैटर्न फॉर द कम्युनिकेशन. उसके लिए कोई फिक्स पैटर्न नहीं होती बात करने के लिए जनरल में, जबकि टेक्निकल में एक स्पेसिफिक पैटर्न होती है, राइट? जनरल कम्युनिकेशन मोस्टली ओरल होता है, राइट? और टेक्निकल कम्युनिकेशन ओरल एंड रिटन बोथ होता है, राइट? अगर आपको फ्रेंड के साथ बात करनी है तो आप उसको मेल टाइप करके नहीं भेजोगे, गेटिंग दिस? आप डायरेक्टली कॉल करोगे. और सपोज आपको सर के साथ बात करनी है तो आप सबसे पहले परमिशन लोगे. इफ ही अलाउज यू देन यू कैन मूव फॉरवर्ड, राइट? डज नॉट ऑलवेज स्पेसिफिक ऑडियंस, इट ऑलवेज फॉर द स्पेसिफिक ऑडियंस. डज नॉट इन्वॉल्व द टेक्निकल वोकेबुलरी फॉर द ग्राफिक्स. frequently involves the jargons and graphics and etc, right? So this is it about our communication. अभी हम लोग कंसेप्ट जो सीखेंगे दैट वुड बी लिसनिंग स्किल के बारे में हम लोग थोड़ा सीखेंगे अभी. जस्ट ब्रीफ. नाउ लिसनिंग. The process of receiving and constructing the process of receiving and constructing meaning form of responding to the spoken or non-verbal message, that is called as listening, right? आप अगर आप कोई चीज़ सुनते हो, right, आप उसको रिसीव करते हो, either it is spoken or non-verbal message, that is listening. Types of listening: appropriative listening, empathic listening, कॉम्प्रिहेंटिव लिसनिंग या फिर एक्टिव लिसनिंग एंड क्रिटिकल एनालिटिकल लिसनिंग. एप्रोप्रिएट लिसनिंग, द लिसनिंग फॉर अ प्लेजर, एन्जॉयमेंट,
as when we listen music, comedy routine और the entertainment speech, right? यानी हम लोग हमारी डेली लाइफ में कुछ एन्जॉयमेंट के लिए कुछ म्यूजिक सुनते हैं, गाना सुनते हैं, कॉमेडी वीडियोस देखते हैं, राइट? फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, दैट इज कॉल्ड एज एप्रोप्रिएटिव लिसनिंग, right? Describe how we speak to choose the word, use the humor and ask the question, tells the story and argue, right? जो क्या डिस्क्राइब करता है कि अगर जनरली हम लोगों को फन लविंग म्यूजिक सुनना पसंद है तो हम लोग ऐसा बता सकते हैं कि हाँ ये जो पर्सन है वो जॉली पर्सन है, राइट? सो डिस्क्राइब हाउ वेल स्पीक, चूज द वर्ड्स, कैसे हमको वर्ड सिलेक्ट करना है, कैसे हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, टेल्स द स्टोरी एंड आर्ग्यू द पर्स्यूली. एम्पैथिक लिसनिंग, listening to provide the emotional support for the speaker as well as the psychiatrist listen to the patient when we lend to the sympathetic ear to the friend. Empathic listening जनरली कौन होता है? साइकोलॉजिकल पर्सन जो होता है, साइकोलॉजिकल डॉक्टर होता है, वो क्या करता है, जो भी पेशेंट होता है वो पेशेंट को बहुत ध्यान से सुनता है कि उसकी बोलने की पैटर्न कैसी है, वो कहाँ पे अटकता है, वो कहाँ पे उसका फ्लो है, वो क्या वो डिप्रेशन में है या नहीं, यानी बोलने की पैटर्न से पता चल रहा है. दैट इज एम्पैथिक लिसनिंग. It is focused on the understanding, identify with the person's situation, feelings and motives. There are attempts to understand what the other person is feeling. Listener does not necessarily agree or feel the same way with the speaker. Instead of understand the type and intensity of feeling, the speaker is experiencing without the judgment. Right? यानी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको लिसनर को जस्ट सुनना होता है, अग्री करना होता है, नहीं करना होता है वो बाकी की बात है. आपको उसकी फीलिंग्स को समझना होता है, राइट? उसको जज नहीं करना होता है कि वो पर्सन कैसा है. गेटिंग दिस? सो दैट इज एम्पैथिक लिसनिंग. कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, ओके, दिस इज लास्ट फॉर अ लेक्चर. दैट इज द लिसनिंग टू अंडरस्टैंड द मैसेज फॉर अ स्पीकर व्हेन वी अटेंड द क्लासरूम लेक्चर. दैट इज डायरेक्शन टू फाइंडिंग फॉर अ फ्रेंड्स हाउस, राइट? comprehensive listening means what? Listening to understand the message of speaker का मैसेज सुनने की ट्राई करते हैं, as well as we attend a classroom lecture or listen the direction of finding a friend's house, right? यानी आप अटेंशन देके आप वो चीज़ को सुनते हो, कॉम्प्रिहेंटिव या फिर एक्टिव लिसनिंग. हमारा माइंड दो तरीके से काम करता है, एक्टिव एंड पैसिव, राइट? एक्टिव मतलब आप अभी करंट जो सिचुएशन हो दैट इज एक्टिव, तो एक्टिव मतलब आप किसी चीज़ को ध्यान से सुन रहे हो, सो दैट इज एक्टिव लिसनिंग. Focus on accurately understanding meaning of the speaker's words while simultaneously interpreting the non-verbal cue such as facial expression, gesture, posture and vocal quality, right? So that is the active listening. So steps of active listening हम लोग next class में देखेंगे. Till that, okay for today's lecture. I hope you like today's lecture. Okay, bye bye, take care.